Assalamu alaikum students. This topic is about charging and discharging of a capacitor through resistor. You have studied that capacitor is a passive electrical device used to store the electrical charges or electrical energy. Here in this topic, we will be explaining the process and the basic mechanism for this storage phenomena. And one thing, the important one, you must keep in mind that if the capacitor is capable of storing the charges, then it also can release those charges. यानी अगर एक कैपेसिटर ने चार्जेस को स्टोर कर लिया है तो ये वो चार्जेस वापस दे भी सकता है, बस जस्ट कंडीशंस विल बी डिफरेंट. I mean, for the capacitor to store the charges, it must be connected to a source, a battery, a power supply, and to release the same charges, it must be disconnected from the source. कॉमन सेंस की बात है बच्चे कि अगर हमने किसी कैपेसिटर को चार्ज करना है, हम चाहते हैं कि वो चार्जेस स्टोर करे, तो हमने उसको कोई सप्लाई देना है, वो उस सप्लाई से एनर्जी स्टोर कर लेगा और वो चार्जेस उसके पास स्टोर पड़े होंगे, सेफ पड़े होंगे. सो नाउ इफ़ वी नीड दोज चार्जेस टू बी डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द कैपेसिटर, सो अब उसके साथ सोर्स को कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सोर्स आप हटा देंगी. सो नाउ यू कैन डिस्चार्ज, यू कैन रिलीज द चार्जेस फ्रॉम दैट कैपेसिटर. सो the first condition in which the capacitor is connected to the external source or battery, that is called the charging of the capacitor. And of course, the second condition in which you are going to disconnect the capacitor from the source, that is known as discharging. Means the storage of the charge is the charging process and release of the charge by the capacitor is discharging. Now look at the diagrams. The first figure, this one. Look, this one. A capacitor C is connected to a resistance R, such as the combination of RC is designed. This RC circuit is connected to the power supply through this key. Key is just a path of current. अगर आप इस की को क्लोज रख रही हैं तो आपकी सर्किट कंप्लीट हो जाती है, तो करंट या चार्जेस फ्लो करते हैं. और अगर आप इसको ओपन कर देंगी, डिस्कनेक्ट कर देंगी सर्किट को, तो दिस विल बी लाइक दी ओपन सर्किट, तो चार्जेस या करंट फ्लो नहीं करेगी. सो की इज़ जस्ट दी स्विच, it is just the path, either it is on or it is off, it is closed or it is open, it depends. So now the combination of this RC is connected to a power supply. So this circuit can be known as RC circuit, but as power supply is connected, so it will be used for the charging of the capacitor. So you can also call this circuit as RC charging circuit. आप इसको charging circuit भी बोल सकती हैं, ठीक है. So means this circuit will be used to store the charges on the plates of the capacitor and will be termed as RC charging circuit. लुक, और किस तरह से चार्जेस स्टोर होंगे पिछले टॉपिक में मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, कि बैटरी जब कनेक्ट हो जाती है तो प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर पे चार्जेस किस तरह से स्टोर होते हैं. सो इनिशियली हियर फॉर द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, इनिशियली व्हेन टाइम इज ज़ीरो, potential is zero, so charges stored are zero. When the switch or key is open, this switch or key is open, so there is no potential supply to the circuit, RC circuit, and there will be no charges stored. But when the key is closed, the capacitor is started gradually to be charged up. ये चार्ज स्टोर करने शुरू हो जाता है थ्रू दिस आर. इस पे चार्जेस स्टोर्ड होते जाते हैं, आते जाते हैं until the voltage across the capacitor reaches the supplied voltage. Common sense.
इसकी पोटेंशियल, जब इसकी पोटेंशियल की इक्वल हो जाती है तो ये सिस्टम बैलेंस हो जाता है, ये सर्किट बैलेंस हो जाती है, मतलब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया है, इट इज़ सिचुरेटेड नाउ। तो बस वहाँ तक चार्जेस स्टोर्ड होते जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है सिस्टम या जो सर्किट थी वो बैलेंस हो गई। देखें, चार्जेस फ्लो करेंगे, करंट फ्लो करेगी या पोटेंशियल फ्लो करेगी तब तक जब तक इस और इसके पोटेंशियल के दरमियान डिफरेंस है, तो ही ये फ्लो होगा, पॉसिबल है। अगर इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के सेम हो गया तो फिर आपके पास सर्किट बैलेंस हो गई, देयर इज़ नो पोटेंशियल डिफरेंस, सो नो चार्जेस विल बी मूव्ड। चार्जेस हमेशा मूव करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, ठीक है। कीप इन माइंड, ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुकी हैं। सो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि when the key or switch of the capacitor is closed, the capacitor is started gradually to be charged up until the voltage across the capacitor reaches the maximum supplied voltage. So the capacitor is fully charged, ठीक है। ये आपके पास है। Now look at the second diagram. When the fully charged capacitor is now disconnected from the battery or source, इस वाली डायग्राम में चेक करें, आपको कोई सप्लाई नहीं नज़र आएगा, जस्ट RC सर्किट है और ये आपके पास की लगा हुआ है, दैट इज़ जस्ट फॉर दी कंप्लीशन ऑफ दी सर्किट। की का तो और कोई रोल नहीं है आपके पास, तो यहाँ पे बैटरी नहीं है। सो दिस सर्किट इज़ एक्चुअली दी RC डिस्चार्जिंग सर्किट, ठीक है। सो this capacitor will begin to lose the charges. The capacitor will be discharged and it will discharge itself back, and now the circuit is, as I call it, RC discharging circuit, and the stored charges or energy inside the capacitor will be extracted कब तक? till decaying to zero, जब तक सारे के सारे चार्जेस इसमें निकल ना जाएं इस सर्किट के अंदर, जब तक ये फुली डिस्चार्ज हो जाए, जब इस पे ज़ीरो चार्जेस रह जाएं तो आपके पास जो है ये कंडीशंस, ये तब तक आपको चार्जेस देता रहेगा, ठीक है। और नाउ लुक, चार्जेस कितने स्टोर होंगे RC चार्जिंग सर्किट में? सिंपल, Q इज इक्वल टू CV, फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। कैपेसिटर की बेसिक नेचर आपके पास चेंज नहीं होगी, वही नेचर होगी कि चार्जेस कितने स्टोर हो रहे हैं, डिपेंड अपॉन दी CV, और यही चार्जेस डिस्चार्ज भी होंगे इन दी RC डिस्चार्जिंग सर्किट, जस्ट कंडीशंस डिफरेंट होंगी। देखिए, मैंने पहले स्टार्ट में ही बात कर ली थी कि अगर एक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो वो डिस्चार्ज भी होगा, वो चार्जेस स्टोर कर रहा है तो वो आपको चार्जेस दे भी सकता है। कंडीशंस डिफरेंट होंगी। क्या कंडीशंस होंगी? लुक, फॉर चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर द इनिशियल कंडीशंस आर लाइक टाइम इज ज़ीरो, करंट इज ज़ीरो, means potential is zero, so no charges are stored. But for a discharge of a capacitor, the initial conditions are टाइम इज़ ज़ीरो, डिस्चार्जिंग जहाँ से स्टार्ट होगी वहाँ पे टाइम ज़ीरो है, करंट इज़ ज़ीरो, बट चार्जेस आर मैक्सिमम। मैक्सिमम चार्जेस को या तो Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं या Q मैक्सिमम से, ठीक है। सो आई होप द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग of the capacitor that is clear to you theoretically. Thank you so much.